Hello students, I have sent you a lesson, The Lion, the Man and the Statue. At first we will read it. I will read here, you just listen and then we will solve the pointers, okay? The Lion, the Man and the Statue. Long ago, men and animals could talk to each other. Once a man and a lion got talking. The lion was very proud of his strength. I am the king of beasts. I am stronger than any man. That is why men fear me. The man was also proud of his intelligence. Don't forget that men are more intelligent than you are. That is why they can hunt you or capture you. They both began to argue about who was greater. At last, the man took the lion to a statue in a big garden. It showed the great hero Hercules standing proudly with a dead lion at his feet. See, this statue proves that men are greater, claimed the man. Not at all, the lion replied quickly. This only shows that the statue was made by a man. If lions made statue, they would show the lion standing and the man lying dead under his paws. From this story, we can see that the story depends on the storyteller. When someone else tells the same story, they tell it from their point of view. Okay students, means here the moral of the story is how each one of them thinks to be superior to other is very interesting. This is because someone tells something that he or she has his own point of view and he or she tries to satisfy it, what he thinks about it, by trying to convince others. Here both are not ready to accept each other's opinion, both the lion and the man. Okay, now we will take the pointers. Okay, first is listen carefully to find the answers from the story. What is the first question? Who speaks first in the story? Who speaks first in the story? As you know, here which is the dialogue? First dialogue is I am the king of beasts. I am stronger than any man. That is why men fear me. Means the dialogue is the lion. So here first speak the lion. The answer is the lion. Now we will take the second question. What was the lion proud of? Okay. The answer is, where is the answer? The answer is in the which sentence answer? The lion was proud of. Where is the, okay, the lion is proud of his strength है, तो यहाँ पर आंसर है. थोड़ा सा ब्रश में छोटा करने वाली हूँ, then you can realize the proper answer. okay, और हम रेड पेन का यूज़ करेंगे. तो वेर द लायन वॉज वेरी प्राउड ऑफ हीज स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर आंसर है. तो आपको आंसर किस तरह से लिखना है? द लायन इज़ द सब्जेक्ट, वॉज फॉरवर्ड वन है और द लायन वॉज प्राउड ऑफ हीज स्ट्रेंथ. ठीक है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? वी विल लुक इट. थर्ड वन, व्हाट वॉज द मैन प्राउड ऑफ? तो कहाँ पर है आंसर? मैन वॉज प्राउड ऑफ, इस तरह से. तो यहाँ पर है द मैन वॉज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस. द मैन वॉज प्राउड ऑफ इंटेलिजेंस. तो एक वर्ड में आंसर क्या आया? हीज इंटेलिजेंस. नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन. फोर्थ वन क्या है? व्हाट डिड द मैन शो टू द, यहाँ पर क्या है? शायद लायन, लायन ही है. ओके, व्हाट डिड द मैन शो टू द लायन? तो इंसान ने लायन को क्या दिखाया? आंसर यहाँ पर है, क्या दिखाया है? देखो, द मैन टुक द लायन टू अ स्टेचू इन अ बिग गार्डन. तो वहाँ पर द ग्रेट हीरो हरक्यूलस, स्टेचू किसकी है? तो आपको ये पूरा लिखा तो भी चलता है और स्टेचू लिखा तो भी चलता है.
द ग्रेट हीरो हरक्यूलस अपॉस्ट्रॉफी एस लिखो स्टेचू, और द स्टेचू ऑफ द ग्रेट हीरो हरक्यूलस, द स्टेचू ऑफ द ग्रेट हीरो हरक्यूलस, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, लास्ट वन, हु स्पीक्स लास्ट इन द स्टोरी। तो अंत में कौन स्पीक आउट करता है, तो कौन बोलता है लास्ट में। ओके, लास्ट वाला यहाँ पर है डायलॉग, इफ़ लायंस मेड द ओनली शोज द लायन रिप्लाइड लास्टली, दिस ओनली शोज दैट द स्टेचू वॉज मेड बाय अ मैन, इफ लायंस मेड स्टेचू दे वुड शो द लायन स्टैंडिंग एंड द मैन लाइंग डेड अंडर हिज पॉज। तो ये लास्ट सेंटेंस है और कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। ओके, so here answer is the who speaks last in the story, the lion speaks last in the story. Okay, then next one, second question is read the story aloud along with the teacher. टीचर के साथ आपको स्टोरी रीड करना है, घर में आप स्टोरी रीड करेंगे। टेल द स्टोरी इन शॉर्ट इन युअर मदर टंग। तो मातृभाषेत तुम्हाला मराठीमध्ये स्टोरी लिहून काढायची आहे, थोडक्यात अगदी लिहा। देन टेल द मॉरल ऑफ द स्टोरी इन युअर मदर टंग। तर गोष्टीचे तात्पर्य तुम्हाला मातृभाषेत सांगायचं आहे की ज्या दृष्टिकोनातून आपण बोलत असतो, आपण एखादी गोष्ट सांगत असतो, ती आपल्या दृष्टिकोनातून आपण सांगत असतो। दुसरा सांगताना त्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं दुसरा म्हणजे त्याच्या दृष्टिकोनातून तीच गोष्ट सांगणार आहे, बरोबर आहे। देन वी लर्न टू थिंग्स, फाइंड आउट वर्ड्स बिगिनिंग विथ PR फ्रॉम द स्टोरी एंड गेस द मीनिंग ऑफ ईच। तो आपको स्टार्ट्स फ्रॉम PR से वर्ड सर्च करने हैं और उसके मीनिंग बताने हैं, ठीक है। तो PR से फर्स्ट इंटू फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर सेकंड में प्राउड है, तो प्राउड है यहाँ पर है। द लायन वॉज प्राउड, टू बी प्राउड ऑफ, इट इज़ अ फ्रेज, टू बी प्राउड ऑफ चा अभिमान वाटणे, ठीक है। देन आफ्टर प्राउडली, ये उसी का है, एडवर्ब है अभिमानाने, तो अगेन प्राउड ऑफ ईयर आया है। तो यहाँ पर प्रूव्स है, प्रूव साबित करना, सिद्ध करने, ठीक है। दो ही वर्ड यहाँ पर PR से बनते हैं, शायद अगर ज़्यादा हो तो आप लिख लीजिएगा। ओके, सेंड मी ऑन व्हाट्सअप, होमवर्क व्हाट्सअप। देन वी लर्न टू थिंग्स इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टोरी, फाइंड अँड राईट द सेंटेन्सेस विच टेल अस दॅट। बघा, आपण काय शिकलोय ते शोधणारी वाक्य सांगा म्हटले। मेन अँड ॲनिमल कॅनॉट टॉक टू इच अदर नाऊ। आता माणसं आणि प्राणी एकमेकांशी बोलत नाहीत, तर हे सांगणारं कुठलं वाक्य होतं, तर फर्स्टच होतं बघा, काय आहे, लॉंग ॲगो, पूर्वी, मेन अँड ॲनिमल्स कुड टॉक टू इच अदर, कुड V2 ऑफ कॅन, बोलू शकली, म्हणजे त्या काळात ती बोलू शकत होती। ओके, देन लायन्स डू नॉट मेक स्टॅच्यू। सिंह कधी स्टॅच्यू बनवतील का रे, ते बनवू शकत नाहीत। पण इथं सिंहाचं काय आहे, वाक्य आहे बघा, इफ दिस ओनली शोज दॅट स्टॅच्यू वॉज मेड बाय अ मॅन। इथून बघा, इफ लायन्स मेड स्टॅच्यू दे वुड शो द लायन स्टँडिंग अँड द मॅन लाईंग डेड अंडर हिज पॉज। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय opposite of lions do not make statue nowadays and those days also, but here the lion told that man, if we made, if condition clause वापरला आहे तिथं, if we made statues, मी जर बनवला असता तर। ओके, ते वाक्य तुम्हाला तिथं लिहायचं आहे। रीड द टेक्स्ट अँड राईट वॉट द स्पीकर्स विल से। यहाँ पर ए में क्या लिखा है, रीड आउट करना है। राजू थिंग्स It's fun to pull his puppy's tail. Okay, तो राजू सेज, तर राजू काय म्हणाला आहे बघा, राजू थिंग्स, त्याला काय वाटतं आहे, इट्स फन टू पुल हिज पपीज टेल, त्याच्या कुत्र्याच्या पिलाची शेपूट ओढणं गमतीशीर आहे। मग तो काय म्हणेल रे, इट्स फन टू पुल माय पपीज टेल म्हणेल ना, मला कुत्र्याची शेपूट ओढायला मला आवडते। देन बी, रोमाज ग्रॅनी, ग्रॅनी मीन्स ग्रँडमदर, रोमाज ग्रॅनी थिंग्स रोमा शुड वेअर अ सारी फॉर फेस्टिवल। रोमाच्या आजीला काय वाटतं की फेस्टिवलसाठी, कार्यक्रमासाठी रोमानं साडी नेसावी। ओके, मग ती काय म्हणेल, रोमाज ग्रॅनी सेज रोमा शुड वेअर अ सारी फॉर फेस्टिवल। रोमाची आजी म्हणाली रोमानं फेस्टिवलसाठी, कार्यक्रमासाठी साडी नेसावी। ओके, नाव थर्ड वन,
The teacher gave a surprise test to students. Some of them found it difficult. बघा टीचरांनी काय दिलेली आहे, सरप्राईज टेस्ट दिलेली आहे, अचानक चाचणी घेतलेली आहे आणि काही मुलांना ती अवघड वाटली. स्टुडंट्सचे, आता विद्यार्थी काय म्हणतील बघा, स्टुडंट्सचे सम ऑफ अस हॅव फाउंड द सरप्राईज टेस्ट डिफिकल्ट. आमच्यापैकी बऱ्याच जणांना, थोड्या जणांना काय गेली, ही सरप्राईज टेस्ट अवघड गेली. ओके. नाउ लास्ट वन, अ लेपर्ड वँडर्ड इन टू अ सिटी. तो भटकत होता चित्ता. अ बिग पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट नियर दॅट सिटी हॅड बीन कट डाऊन टू बिल्ड द सिटी. आणि एक जंगलाचा मोठा भाग, सगळी झाडं तोडलेली होती कशासाठी, शहर बांधण्यासाठी. तर तो काय म्हणेल रे, अ लेपर्ड सेज, तो काय म्हणतो, आय वँडर इन टू अ सिटी बिकॉज अ बिग पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट नियर दॅट सिटी हॅज बीन कट डाऊन टू बिल्ड द सिटी. ओके. Now we will take the next page. Use your imagination to complete the following. ठीक है, हमारे हिसाब से ये कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट वाला काय आहे, दॅट इज वाय, म्हणून च्या कारणानं. आय डिडंट ईट द मँगो, मी आंबा खाल्ला नाही. मग इफ मँगो काय असावा, तो शुड बी रॉ असेल. मग कसं होणार, द मँगो वॉज राईप. इथं डिडंट वापरले, पास्ट टेन्समध्ये आहे, म्हणून आपल्याला प्रिव्हियस सेंटेन्स पण पास्ट टेन्समध्ये करायचं आहे. द मँगो वॉज रॉ, कच्चा होता. दॅट्स वाय आय डिडंट ईट द मँगो, हे उत्तर येईल. किंवा द मँगो वॉजंट इन गुड कंडिशन, तो चांगल्या स्थितीत नव्हता. दॅट इज वाय आय डिडंट ईट द मँगो. ओके. देन सेकंड बी, दॅट इज वाय द फार्मर बीट द कॅमल, आणि म्हणून शेतकऱ्याने त्या उंटाला झोडपले. मग द कॅमल कुडंट स्लीप अवे, म्हणजे तो पळू नाही शकला. कुडंट रन अवे असं घ्या. त्याच्यानंतर किंवा द कॅमल स्टेड देअर. ओके. द कॅमल स्टूड देअर असेल, सॉरी स्टेड नाही, द कॅमल स्टूड देअर ॲज अ पोल, खांबासारखा उभा राहिला. दॅट इज वाय द फार्मर बीट द कॅमल असं येऊ शकते. नाव सी, दॅट इज वाय द मंकी जम्पड इन टू द लेक, माकडानं त्या लेकमध्ये उडी मारली. काय असेल रे, काय येईल बघा, द फार्मर्स केम देअर विथ हार्ड स्टिक. दॅट इज वाय द मंकी जम्पड इन टू द लेक, शेतकरी मोठी काठी घेऊन आले आणि म्हणून त्या माकडानं उडी मारली असेल. किंवा द ट्री बिगॅन टू कट, ते तुटायला सुरुवात झालेली होती म्हणून त्यानं उडी मारली असं घ्या. D1, दॅट इज वाय नुंजो विजिटेड द अर्थ. काय रे, नुंजो वॉन्टेड टू स्टडी ह्युमन बॉडी पार्ट्स. नुंजो वॉन्टेड टू डू सम प्रोजेक्ट्स ऑन अर्थ्स पीपल. दॅट इज वाय नुंजो विजिटेड द अर्थ. ओके. देन आपको ही प्रीवियस और आफ्टर वाला आपको ही बनाना है. तो द डॉग बीट द मैड मैन, दैट इज वाई ही ऑल्सो बीट द डॉग. ओके. then I finished my tiffin, that is why I went to play. मी माझा डबा संपवला म्हणून मी खेळायला गेलो. ओके. देन नेक्स्ट, अंडरलाइन द नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. ओके. नाउन एक तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है. वंस अ मैन. ओके. तो यहाँ पर वंस अ मैन नाउन है. देन अ लायन, तो गॉड टॉकिंग ये वर्ब में जाता है. आई एम द किंग है, आर्टिकल्स नाउन के पीछे लगता है. और बीस्ट यानी एनिमल्स, कॉमन नाउन्स आ गए. एट लास्ट द मैन, कॉमन नाउन. टुक द लायन, अ स्टैचू, ओके, कॉमन नाउन है. एंड गार्डन, दिस वन इज कॉमन नाउन ऑल्सो. दीज आर द नाउन्स. ओके. अभी नाउन को क्या करना है, आपको फ्रेज में कन्वर्ट करना है. यूज़ ईच नाउन टू राइट अ मीनिंगफुल फ्रेजेस एंड देन सेंटेंसेस. फ्रेज भी बनाने हैं, सेंटेंस भी बनाने हैं. तो एग्जाम्पल क्या बना, मैन, अ यंग मैन आप बना सकते हैं. एन ओल्ड मैन, अ क्लेवर मैन. देन आपको सेंटेंस बनाना है. अ यंग मैन वॉज राइडिंग अ बाइक, अ क्लेवर मैन वॉज सॉल्विंग द पजल. इस तरह से, ठीक है. तो लायन के ऊपर आपको सेंटेंस बनानी है. तो अ लायन, अ ब्रेव लायन रहेगा. तो अ ब्रेव लायन फॉट विथ द बियर. ओके.
Then read the following words aloud. Note the last letter and say the last sound. तो ये आपको रीड करने हैं और लास्ट साउंड को लिखना है. जैसे उन्होंने कहा है जॉब, जॉब्स, क्यूब, क्यूब्स. तो ये क्या है, सिंगुलर और प्लूरल है. जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉक है. तो कॉक का बना, यहाँ पर कॉक्स है नहीं, जस्ट मेक वन मेनी पेयर्स एज शोन. तो पेज दिख नहीं रहा है, ठीक है. अभी मेक वन मेनी पेयर्स एज शोन बाय एडिंग ES एट द एंड ऑफ द वर्ड. हाँ, तो यहाँ पर जॉब, जॉब्स ऐसे करके पढ़ना है आपको. जस्ट कॉक का हो गया कॉक्स, ठीक है. तो उसके बाद किड का हो गया किड्स, ठीक है. उसके बाद है फाइल, फाइल का हो गया फाइल्स. ट्री, trees, yes suffix is there. Dog, dogs, yes is there. Shell, shells, yes suffix is there. Dream, dreams, yes suffix is there. Train, trains, yes suffix is there also. Map, maps, yes is also there. Car, car is singular, plural is cars. Bat, bats, paw and paws. Okay, it is easy. But here in first column yes suffix is there, and into second column now double S is suffix there. Okay, class, classes, ES is there. Then glass, glasses, ES. Dress, dresses, ES suffix. Brush, brushes, ES suffix. Dash, DASH, ES, dashes. Dish, dishes. Eyelash, eyelashes. Match, matches. Branch, branches. Bunch, bunches, ES लगाना है. Fox, foxes. And box, boxes. All words take the suffix ES here. Okay, then next last वाला है. लास्ट वाला क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंस रीड करने हैं. यूज द आइडियाज इन ईच बॉक्स टू मेक सिमिलर सेंटेंस. सिमिलर सेंटेंस हमें बनाने हैं, ठीक है. देखते हैं क्या है. आई एम स्ट्रॉन्गर दैन एनी मैन. तो यहाँ पर आई एम स्ट्रॉन्गर दैन एनी मैन. तर लॉयन, बिगर, माउस आणि स्मॉलर असे आहेत. हां, ठीक आहे. माउस इज स्मॉलर दॅन अ लायन हो सकता है ना. टू टॉलर ट्रीज और शॉर्टर है. तो टू ट्रीज आर शॉर्टर दैन द अदर ट्रीज. ये सेंटेंस आपको बनाने हैं. सन है, ब्राइटर है, मून है. तो द सन इज़ ब्राइटर दैन द मून. स्टोन है, ब्रिक है, हार्डर है. तो स्टोन इज़ हार्डर दैन अ ब्रिक. तो ये आसान है. अलग सा मेन आर मोर इंटेलिजेंट दैन यू आर. मोर इंटेलिजेंट, मोर लेके बनाने हैं. मोर इंटरेस्टिंग, मोर कलरफुल. तो देखो यहाँ पर दीज टू बुक्स आर मोर इंटरेस्टिंग दैन योर बुक्स. टू बटरफ्लाइज को लेकर दीज टू बटरफ्लाइज आर मोर कलरफुल दैन दोज बटरफ्लाइज. ठीक है. तो ये मोर और मोस्ट, फिर ER EST, ये जो डिग्रीज़ है एडजेक्टिव के, ये अलग सा हम ग्रामर में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पर आपको बस दो सेंटेंस बनाने हैं. ठीक है. ओके.